Now, Delhi records the lowest minimum temperature recorded this winter season at 3.9 degrees Celsius as a blanket of dense fog reduced the visibility to 0 meters. Most parts of North India continue to reel under severe cold wave conditions. Due to the prevailing cold wave conditions, a red alert has been issued in Delhi, Punjab and Haryana, and an orange alert in the region for tomorrow. The Indian Meteorological Department said that dense fog and prevailing cold wave conditions are unlikely to abate in parts of northwest India till January 15th. My colleague Brian Thomas joins us on the broadcast. Brian, where are you located at this point of time, and what can you tell our viewers on this cold wave that the whole of North India is facing? But of course, you're in Delhi, so over to you. Well, Asavri, as days are passing, the temperatures are dropping, and today is, by the IMD, today is regarded as the coldest winter with 3.6 degrees Celsius. We show you the visuals also. We are at Central Delhi, Mandi House, and you can actually see that there is a dense layer of fog that is engulfing in the very national capital. Earlier also, there was fog, and the visibility is around 200 meters given by the IMD. And even a yellow alert also has been, issued at the parts of the national capital, and red alert in Ghaziabad. The neighboring cities like, Ghaziabad, Uttar Pradesh, Rajasthan. So yes, and even in the isolated pockets, the temperatures are on a very, very decrease. And not just isolated pockets, even when we are standing at the, at the very central, you can actually see and understand the fact that there is persistent amount of fog. And not just fog, it is, it is a very cold day. It's regarded as the coldest day, coldest winter with 3.8 degrees Celsius. So yes, it's a very cold day. So there is no respite in terms of cold. A cold alert also has been given by the IMD. And even if we talk about trains, there are several trains that are running 10 to 12 hours late because of the low visibility, especially in the isolated pockets. There are numerous flight operations also that are being delayed because of low visibility, and literally zero visibility in the airport area. So yes, the situations are very, very gruesome at the national capital. Even experts are giving advisories to children and elderly to stay indoors as possible, because right now there is a chance where it might cause a lot of health problems, be it cough, cold. So yes, it is persistent. And if we show you the visuals also, again you see it's a very gloomy weather, it's a very cloudy weather. And there's no sunrise till now as well. So you can actually see and understand that it's a gloomy weather, it's a cloudy weather. As a result of that, also the fog is also reached the very surface level, and as a result of that, also vehicles that are moving from one place to another will face a lot of problem in terms of the visibility. Yes, Sabri. Right, absolutely, Brian. We just saw those visuals over there, and as you're saying, it's gloomy. I mean, the visibility looks very, very poor. Let's in fact quickly toss to my colleague Rajat Kumar, who's joining us from Greater Noida. Rajat, of course, we've seen what it's like in Delhi, but what is it like in Greater Noida? देखिए, विजुअलिटी की बात की जाए तो कल के मुकाबले विजुअलिटी काफी बेहद खराब है। सड़कों पर कुछ दिख नहीं रहा। अभी कुछ ही समय पहले एक घटना हुई है कोयले की वजह से, ड्राइवर को कुछ दिखा नहीं है। तो कहीं ना कहीं सर्दी का प्रकोप है वो एनसीआर में देखा जाए, चाहे नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, या आसपास के कोई भी क्षेत्र एनसीआर से, हर तरफ कोयला है। कोयले की वजह से तमाम जो वाहनों की रफ्तार है वो थम चुकी है, ट्रेनें हैं वो रद्द हो चुकी है। उसके साथ साथ जो लोग जो सुबह सुबह हम देखते थे कि पार्कों में घूमते थे सैटरडे और संडे के, तो आज वो लोग हैं घरों में कैद हो चुके हैं। हर तरफ कोयला ही कोयला नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो पूरा जनवरी का जो दिन है वो सर्द से भरा रहेगा। वहीं जिला प्रशासन की बात की जाए तो जगह जगह पर रेंज बसेरे की व्यवस्था की गई है, जिसमें जिन लोगों के पास छत नहीं है वो उनका सहारा ले सकते। कहीं ना कहीं सर्दी का सितम ऐसा हो चुका है कि लोग हैं वो बेवजह सड़कों पर घूम नहीं रहे, हर तरफ कोयला ही कोयला नजर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि अगर सर्दी से बचा है तो बेवजह सड़कों पर ना घूमे। तभी इस सर्द भरी हवाएं भी चल रही, उसके साथ साथ तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे यमुना एक्सप्रेसवे की बात की जाए, नोएडा एक्सप्रेसवे की बात की जाए, वहां पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो लोगों को जागरूक करती है देर रात, क्योंकि अधिकतम देखा जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे वो क्षेत्र है जहां पर सर्दी के समय विजुअलिटी कम होती है, तो उस दौरान घटनाएं हैं वो ज्यादा हो जाती हैं।
वो घटना ना हो, वहां पर चालकों को समझाया जाता है कि आप अपने वाहन की गति है वो धीमी रखें जब विजुअलिटी कम हो उसी दौरान। तो कहीं ना कहीं सर्दी का सितम वो एनसीआर में देखा जा रहा है और पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में आ चुका है। लोग हैं वो बेवजह सड़कों पर नहीं घूम रहे हैं। तो उसके साथ साथ नोएडा पुलिस अब तमाम ऐसे क्षेत्र जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हो गए वो जिला प्रशासन द्वारा वहां पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है। और उसके साथ साथ तमाम ऐसे क्षेत्र है वहां पर नोएडा पुलिस देर रात गश्त करती है और देखती है अगर कोई भी व्यक्ति है जो ठंड से परेशान तो नहीं है, उसे ठंड से कोई ठंड की चपेट में तो नहीं आ रहा। तो जिला प्रशासन कहीं ना कहीं एक्टिव है और सीएम योगी का भी सख्त आदेश था कुछ दिन पहले कि हर जिले में जिलाधिकारी वो अपने स्तर पर कार्रवाई करे। वही नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा भी तमाम जो उपकरण है वो अपनाए गए हैं और कहीं ना कहीं इस भर्ती संघ से लोग परेशान है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों का है जो सुबह सुबह अपने घरों से काम धंधे के निकलते हैं, कंपनियों में जॉब करते हैं। तो वो जब सुबह निकलते हैं तो उनको कहीं ना कहीं भीषण सर्दी का सामना करना पड़ता है, कोहरे का सामना करना पड़ता है। और साथ ही अस्पतालों की बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है तो उसके बाद जो अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सर्दी का सितम है वो नोएडा ग्रेटर नोएडा में हर तरफ देखा जा रहा। लोग हैं वो घरों में कैद हो चुके, बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। Gee, absolutely, Rajat. Stay on with us. My colleague Shakti joins us from Patna, Bihar. Shakti, if you could take our viewers through the fog conditions that are prevailing in Bihar. बिहार में जो है पिछले 2-3 दिनों से जो ठंड में उसमें काफी जो है बढ़ोतरी हुई है। और आपको बताएं कि बिहार के कई जिलों में खास करके जो उत्तर बिहार है वहाँ पे जो है ज्यादा ठंड का असर है। ठंड हवाओं के कारण जो है ठिठुरन जो है और बढ़ गई है, जिससे लोगों का जो है घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि प्रशासन ने अलर्ट मोड को लेकर जो है पटना के सहित बिहार के कई स्कूल जो है 16 जनवरी तक के लिए प्री नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक के जो बच्चे हैं उन स्कूल को जो बंद कर दिया है क्लासेस को। और साथ ही आपको बताएं कि जो फॉग के कारण जो है जो लॉन्ग रूट की ट्रेनें हैं और जो है वो काफी घंटे डिले चल रही है। करीब 7 से 8 घंटे जो है कई ट्रेनें जो है लेट चली है, जिससे यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात फ्लाइट की करें तो कई फ्लाइटें जो है कम विजिबिलिटी के कारण जो है वो लैंड नहीं कर पा रहे हैं पटना एयरपोर्ट पे। और सुबह के समय जो है काफी मुश्किलों होता है और खास करके कई फ्लाइटों को जो है दूसरे कोलकाता डाइवर्ट किया जा रहा है सुबह के समय। हालांकि आज जो है फॉग थोड़ी सी कम है कल की अपेक्षा, तो ऐसे में लेकिन ठंड जो है वो आज ज्यादा है। और मौसम विभाग ने कहा है कि 17 जनवरी को जो है बिहार के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है और उसके बाद जो है ठंड में जो है ठिठुरन जो है और भी बढ़ जाने की उम्मीद है। हालांकि जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पे जो है रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था की है। लेकिन साथ ही साथ आपको बात बताएं कि आईएमडी ने जो है लोगों को अलर्ट किया है। जो है अलर्ट जो है पूरे बिहार में जारी है और कहा गया है कि जो बच्चे हैं खासकर सीनियर सिटीजन है दोनों को जो है एहतियात ज्यादा बरतने के लिए सुबह में जो मॉर्निंग वॉक करते हैं जो सीनियर सिटीजन उनको एहतियात के तौर पर आईएमडी ने कहा है कि वो घरों से न निकले और बच्चों भी को भी अगर जरूरत न हो तो घर से बाहर नहीं निकले। और ऐसे में फिलहाल जो है ठंड का सितम जो है पूरे बिहार में के सहित पटना में भी जो है आज भी ज्यादा है। जी Right, absolutely. Stay on with us. My colleague Manoj Malik joins us from Kaithal, Haryana. Manoj, over to you. What is it looking like in Haryana at the moment? मनोज, आपको मेरी आवाज आ रही है? मनोज, आपको मेरी आवाज आ रही है? All right, we'll get that connection sorted. But meanwhile, my colleague Ashik joins us from Srinagar. Ashik, if you could take our viewers through the fog conditions in Srinagar. बिल्कुल स्वाति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते 1 महीने से लगातार जो है ठंड कश्मीर घाटी में बढ़ती जा रही है और इस ठंड की वजह से कहीं ना कहीं आम इंसान भी अब परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। जहां दिसंबर और जनवरी का महीना जो है बर्फ के बगैर निकला, वही अगर हम इन महीनों की बात करें, बीते कुछ सालों की बात करें तो बीते कुछ सालों में इन महीनों में जो है कश्मीर में 7 से 8 फीट बर्फ जमा हो चुकी होती थी। लेकिन आज जो है कश्मीर में मौसम जो है बदला हुआ है, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं आम लोगों के साथ साथ पर्यटक जो यहाँ पर पहुंचे हैं, जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर टूरिस्ट जो है काफी तादाद में पहुंचे हैं, वो भी परेशानी के आलम में मुब्तला हो चुके हैं। क्योंकि उनका कहना
है कि वो महज कश्मीर इस घर से आए थे ताकि विंटर सीजन में वो बर्फ का मजा ले सके, लेकिन मायूस होकर पर्यटक भी, टूरिस्ट भी अब वहां से वापस लौट रहे हैं क्योंकि बर्फ जो है कहीं पर नजर नहीं आ रही है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो आज के मौसम में पहाड़ी इलाकों में 10 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हुआ करती थी, लेकिन आज जो है बर्फ का कहीं पर नामो निशानी नहीं है। अगर हम मौसम विभाग की बात करें, वेट डिपार्टमेंट की बात करें, वेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि अगले कुछ दिनों के बाद ही कश्मीर के मौसम में बदलाव आ जाएगा और पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी देखने को मिलेगी। आपको मैं साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर पानी की किल्लत से लोगों को आज ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि दरियाओं में पानी की कमी जो है नजर आ रही है, जिसकी वजह से घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है और लोग जो है अब जगह जगह पर सड़कों पर निकल आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पानी की वजह से जो है काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ने लगी है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अस्पतालों में काफी ज्यादा रश बढ़ चुका है। बच्चे बुजुर्ग जो है ज्यादातर अस्पतालों में देखे जा रहे हैं क्योंकि कई सारी बीमारियां मुब्तला हो चुकी है। जो ठंड है पिछले 1 महीने से लगातार, और इस ठंड की वजह से कई सारी बीमारियां भी फूट पड़ी है। जी Right, absolutely. My colleague Manoj Malik back with us on the broadcast. He's joined us live from Kaithal, Haryana. Manoj, over to you. What is it looking like in Haryana? जी बिल्कुल, देखिए बात करें तो कैथल जिले की या हरियाणा की बात करें तो लगातार जो ठंड का प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है और अधिकतम तापमान की बात करें तो 7 से 8 डिग्री अधिकतम तापमान पहुंच चुका है। इसी को लेकर दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है। लगातार बात करें आंकड़ों की तो 20% दुर्घटनाएं हैं धुंध के कोहरे के कारण लगातार बढ़ रही है। वही प्रशासन द्वारा भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है कि जो भी साधन है या बड़े साधन है, ट्रंक की बात करें या तो उनको रिएक्टर लगाने को लेकर एक बड़ा अभियान चलाया गया है। वहीं रैन सवेरा को लेकर भी पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा कर ली गई है क्योंकि दूर दराज से जो प्रवासी लोग या दूर यात्री देर रात बस से आते हैं उनको रुकने में कोई परेशानी ना हो। और बात करें रैन बसेरे की तो वहां पर चाय की व्यवस्था और खाने का भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा कर दी गई है। और जो मौसम का बदलाव लगातार बदल रहा है उसको लेकर जो धुंध और जो ठंडी हवा चल रही है इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और बरसात को लेकर भी जो अलर्ट वो कर दिया गया है। जी Right, absolutely. Meanwhile, joining us on the broadcast is my colleague Ajay Jandial. He's joining us live from Jammu and Kashmir. Ajay, over to you. How cold is it at the moment and what is the fog situation like in Jammu and Kashmir? Well, the situation in Jammu and Kashmir is definitely same like the north is facing, because what we have seen that in most of the areas in Jammu that is totally covered with the dense fog. Even right behind me, if you could see that how things are basically taking place, and the weather is still definitely is in the worst condition in Jammu and Kashmir as well. So that is definitely a challenge. Okay, I think we've lost our connection over there, but I'd like to thank all our reporters for joining in on the broadcast and sharing those updates. Meanwhile, my colleagues Anil and Mahindra have filed ground reports on the same. Let's in fact take a look. दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में मौजूद हूँ और गाजियाबाद में क्या हालात बने हुए हैं सर्दी से लेकर, तो वो हम दिखाने के लिए हमारी टीम आज ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। सीधी तस्वीरें गाजियाबाद की हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपने आप को अच्छे से ढककर निकल रहे हैं। सर्दी का सितम लगातार जारी है। इन तस्वीरों से ही अपने आप बयां होता है आखिरकार सर्दी कितनी है। इस कड़ाके की ठंड से लोगों का जीवन कितना अस्त व्यस्त हुआ है, लोग कितना परेशान हैं। ज़्यादातर लोग जो आपको दिख रहे होंगे अपने आप को प्रॉपर ढक कर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजह यही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस ठंड से ने लोगों की सिकुड़न बढ़ा दी है। वहीं आज दूसरी मार भी आज लोग गाजियाबाद के लोग झेल रहे हैं। आज घना कोहरा गाजियाबाद में छाया हुआ है। पूरे गाजियाबाद को आज कोहरे ने अपनी चपेट में ले लिया है। सीधी तस्वीरें NH9 की हम दिखा रहे हैं।
जो गाड़ियों की जो रफ्तार थी उस पर कहीं ना कहीं आज ब्रेक लगा है, क्योंकि घना कोहरा है। आप देख सकते हैं जितने भी वाहन आपको दिख रहे होंगे वो हेडलाइट का उपयोग कर रहे हैं और साथ ही इंडिकेटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वजह यही है, घना कोहरा है और कई इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं क्योंकि विजुअलिटी बेहद कम है। आज गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं जो बेहद घना कोहरा आज छाया हुआ है। तो आप घर से बाहर निकलें तो कृपया हेडलाइट का उपयोग ज़रूर करें, अन्यथा ज़रूरी काम ना हो तो घर पर ही टाइम बिताएं, क्योंकि आज गाजियाबाद में बेहद ज़्यादा कोहरा देखा जा रहा है। जो पास का ही तकरीबन 20 से 30 मीटर की विजुअलिटी आज रह गई है और गाजियाबाद के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जीरो विजुअलिटी है। तो आप समझ सकते हैं पास का भी नहीं दिख रहा है। तो यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कई इस तरीके की सिचुएशन में कई बार दुर्घटना भी हो जाती हैं। तो आप विशेष अपना ध्यान रखें। इंडिया न्यूज़ की टीम लगातार आपको रिपोर्ट देती रहेगी। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। नोएडा एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस कड़ाके की ठंड से लोग बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। वहीं कल हमने देखा किस तरीके से पूरे नोएडा एनसीआर के इलाकों में तेज़ धूप निकली थी, जिसके बाद ठंड से लोगों को राहत मिली थी। मगर आज की बात करें तो आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए किस तरीके से नोएडा समेत पूरे दिल्ली में जो शीतलहर के साथ जो ये कोहरे का प्रकोप है, ये लोगों को अब बहुत ज़्यादा डरा रहा है। तस्वीरें नोएडा की सेक्टर 71 रोड की है। देखिए किस तरीके से घना कोहरा, यानी कि ये कोहरा अगर आप देखेंगे जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो बिल्कुल आपको गायब नज़र आ रही हैं। सामने यहाँ 4-5 सोसाइटियाँ हैं, मगर पेड़ों के अलावा सामने आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। दूर दूर तक केवल घना कोहरा दिखाई दे रहा है और जो विजुअलिटी है वो 10 से 12 मीटर है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है कि सुबह के वक्त जो नोएडा में कोहरा है किस तरह अपनी मोटी चादर से सड़कों को, इमारतों को अपने आगोश में ले चुका है। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो गाड़ियों का डिपर, जो वाहन मालिक हैं वो गाड़ियों का हेडलाइट डिपर जला के, ये तस्वीरें देखिए मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं जाने की सोच रहे हैं, तो ये जो विजुअल है, ये जो तस्वीर है, ये कोहरा है, आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको सावधानी रखनी होगी। ये देखिए मैं अगर आपको एक तस्वीर दिखाऊँगा जूम करके तो किस तरीके से देखिए देखेंगे जो दूर दूर तक केवल आपको ये जो कोहरा है वो नज़र आएगा। जबकि मौसम विभाग ने कहा था कि 13-14 तारीख को राहत मिलेगी, मगर ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से घना कोहरा नोएडा एनसीआर में छाया हुआ है। ये नोएडा का हाल है तो सोचिए ग्रामीण क्षेत्र जैसे कि दादरी, जेवर, कासना, ग्रेटर नोएडा, वहाँ का क्या हाल होगा। तस्वीरें ये बयां कर रही है किस तरीके से जो घना कोहरा है वो सड़कों पे है और जो विजिबिलिटी है वो 15 से 20 मीटर रह गई। ये तमाम जो गाड़ी मालिक है, वाहन मालिक है, वो जो स्वामी है, वो देखिए किस तरीके से जो गाड़ी की डिपर है उसको जलाकर सड़कों पे उतर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो ठंड है और उसके साथ जो कोहरे का अटैक है, ये नोएडा के लोगों को बेहद परेशान कर रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.